So let us start with the next point, that is glycerol. That is an example of trihydric alcohol. Trihydric alcohol. It is a trihydric alcohol. Now, glycerol, it is sold under the trade name of glycerine. Glycerine. It is sold under the trade name as glycerine. Generally, it is used for curing mouth ulcer. मुंह में छाले आ गए तो उस वक्त जो हम इस्तेमाल करते हैं कुल्ली करने के लिए ग्लिसरीन, वही है। तो इसके अंदर उसमें और दूसरी भी चीजें होती हैं, प्योर नहीं होता है, उसमें दूसरी चीजें बोरिक एसिड भी मिक्स होता है, तो इसलिए उसको यूज करते हैं माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। ग्लिसरॉल, इट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स, in vegetables and fats in animals. It is present in animals, and in the form of triglycerides. That is ester of glycerols, esters of glycerol with palmitic acid, stearic acid, lauric acid, etc. ठीक है, तो इसलिए इन द फॉर्म ऑफ ये ग्लिसराइड प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं। चलिए, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल is named as 1, 2, 3. 1, 2, 3. That is propane triol, or propane 1, 2, 3 triol. OL is the class suffix, and tri is showing the number of OH groups, propane 1, 2, 3 triols. So in that way, it is named in IUPAC. Now, the next one is preparation. Its preparation. First preparation, which is the most common, is called as from propene. Preparation from propene, which is the most common and widely used. Propene, or it is also called as, in common system, it is called as propylene. CH3 CH2. Propylene or propene. Now it is reacted with chlorine, Cl2 at higher temperature, near about 773 degree Kelvin. 773 degree Kelvin, that is higher temperature. At higher temperature, the reaction proceeds through free radical mechanism, and one H from here, it reacts with Cl, and another Cl, second Cl replaces hydrogen. So in that way, there is formation of Cl. CH3 is converted into CH2 by eliminating one hydrogen. So it will be CH2, single bond CH as it is, then double bond CH2. Plus there is formation of
one H from here and one Cl from here, so it will form HCl. So it is called as allyl chloride. It is called as allyl chloride. Allyl chloride. Formation of allyl chloride will take place. Allyl chloride. Now, one thing is to be kept in mind. It is taking place in the first step is it is taking place through free radical mechanism. Free radical mechanism, higher temperature है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा. ठीक है. Second step is Cl CH2 single bond CH double bond CH2 allyl chloride. That is the product of first step. So it is reacted with aqueous sodium carbonate. Aqueous sodium carbonate at about 12 atmospheric pressure. 12 atmospheric pressure. कितना है? 12 atmospheric pressure के ऊपर. And a temperature of 423 Kelvin. Temperature कितना है? 423 degree Kelvin. Then it undergoes alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis. यानी ये water जो है it can be written as OH है ना. तो इसमें से ये क्या होगा? OH जाकर ये अटैच होगा यहाँ पर, ये Cl आकर अटैच होगा H के साथ और ये सोडियम इसके साथ मिलकर इनकी रिएक्शन होगी, HCl फॉर्म होगा. HCl सोडियम कार्बोनेट बेस है, दोनों के बीच में there will be reaction to form salt plus water. So in that way the reaction will take place. So HO single bond CH2 single bond CH double bond CH2. CH2. It is called as allyl alcohol. allyl chloride नाम दिए थे ये ग्रुप को हमने, इसको नाम दिया हमने ये allyl alcohol. Allyl alcohol. Plus there is formation of here NaCl plus water. ठीक है, plus water. Two molecules ये बैलेंस करना है, बैलेंस कर दीजिए इसको. ठीक है. So in that way there will be formation of 2H2O. So in that way there will be formation of allyl alcohol. Allyl alcohol. So the second step is hydrolysis, alkaline hydrolysis to form here alkaline hydrolysis. ठीक है. To form here allyl alcohol. There is formation of allyl alcohol. Now the next step, allyl alcohol, HOCH2 single bond CH double bond CH2, that is allyl alcohol. It is then reacted with HOCl, that is called as hypochlorous acid. Hypochlorous acid, HOCl. HOCl. HOCl में से क्या होगा यहाँ पर? OH ग्रुप और एक Cl ग्रुप, ऐसे दो ग्रुप निकलेंगे. ठीक है, ऐसे दो ग्रुप निकलेंगे और दो ग्रुप निकलने के बाद में ये अटैच हो जाएंगे यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन होगी. तो ये आकर अटैच हो गया आपका OH यहाँ पर और Cl जाकर अटैच हो गया यहाँ. So there is formation of HOCH2 single bond CHCl single bond CH2OH. Double bond is converted into single bond. OH जाकर अटैच हो गया CH2 को, Cl जाके अटैच हो गया Cl को, CH को. और इस तरह से there is formation of one compound that is called as glycerol. ठीक है, glycerol बीटा, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा. तो बीटा क्लोरो मोनोक्लोरो है ना, एक ही क्लोरो है इसलिए मोनोक्लोरो हाइड्रीन. मोनोक्लोरोहाइड्रीन, ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रीन. ठीक है,
इस तरह से मोनोक्लोरोहाइड्रीन यहाँ पर बन गया। नाउ आई राइट हियर द अगेन HO CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या नाम बताया भी हमने? इट इज ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरो हाइड्रीन। हाइड्रीन, ठीक है, हाइड्रीन जिसके अंदर OH ग्रुप है उसको अपन हाइड्रीन बोलेंगे, हाइड्रीन। नाउ अब आपको सिंपल क्या करना है, इसके अंदर ये Cl को रिप्लेस करके यू हैव टू अटैच OH ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH यूज करेंगे, NaOH, एक्वियस NaOH। ध्यान में रखना, इट शुड बी एक्वियस NaOH। स्लाइटली इसको हीट करेंगे एक्वियस NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Na और ये Cl दे विल फॉर्म NaCl और OH आकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर CH को। So there is formation of HO CH2 CHOH single bond CH2OH, and it is nothing but it is our desired compound, that is glycerol. So there is formation of glycerol. So in that way we can obtain glycerol from propylene or propene, ठीक है। So in this way there is formation of, तो कितने स्टेप हो गए यहाँ पर, 4 स्टेप हो गए। सबसे लास्ट स्टेप क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का है। हाइड्रोलिसिस कौन सा स्टेप है, लास्ट वाला, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इस तरह से देखिए आपके 4 स्टेप के अंदर हो गया। पहला स्टेप था आपका जिसमें फ्री रेडिकल से हुआ था, हाइड्रोजन ऑफ CH3 ग्रुप इज रिप्लेस बाय Cl। दूसरे स्टेप के अंदर आपने हाइड्रोलिसिस करे। तीसरे स्टेप के अंदर आपने HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन करे। चौथे के अंदर उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किए। इस तरह से 4 स्टेप हो गए। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए पहला है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा जो उसकी सॉलिबिलिटी के बारे में, कलर के बारे में। तो पहला ले लेंगे कलर, तो ये होता है कलरलेस। कलरलेस, इसमें ओडर भी नहीं होती है, तो ओडरलेस। इट इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस कंपाउंड। सिरपी लिक्विड, सिरप, सिरपी लिक्विड, ठीक है, सिरप के टाइप, थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, सिरपी लिक्विड होता है। कलरलेस, odorless and syrupy liquid, it is a syrupy liquid, ठीक है, at room temperature it is liquid, ठीक है। now second point लेते हैं इसका, it is sweet in taste, sweet in taste, sweet in taste, ठीक है, sweet in taste, sweet in taste। third point, third physical property, solubility, solubility of this compound, that is glycerol. It is soluble in water and alcohol, ethyl alcohol, ethyl alcohol, इथिल अल्कोहल, ऐसे दो कंपाउंड दोनों के अंदर, वाटर में और इथिल अल्कोहल में सॉल्युबल है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इथिल अल्कोहल, but it is insoluble in ether, in ether insoluble, it is insoluble in ether। नंबर फोर्थ, अच्छा ये रीजन क्या हो सकता है सॉल्युबिलिटी का, हमने इससे पहले बताया अल्कोहल के अंदर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अल्कोहल, इट इज सॉल्युबल, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे, इसकी विस्कोसिटी जो रहेंगी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये ज्यादा है क्योंकि हमने पहले ही बताया इट इज अ सिरपी लिक्विड, इट मींस इट्स विस्कोसिटी इज मोर, सो इट इज बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इंटरमॉलिक्यूलर, intermolecular, intermolecular hydrogen bonding is more. That is why it is viscous. So its viscosity is higher. It is, and because of this reason, intermolecular hydrogen bonding, its boiling point is also high as compared to alcohol, simple alcohols like ethyl alcohol, propyl alcohol, etc. So it is having high boiling point as compared to their corresponding diols and monohydric alcohols. चलिए, तो इस तरह से ये जो है तो आपको यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में मीन्स केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में पहला लेते हैं, दैट इज द रिएक्शन विथ सोडियम। देयर इज रिएक्शन with sodium metal, sodium metal. Now here CH2 single bond OH, single bond CHOH, single bond CH2OH. Now in glycerol, it is our glycerol. In glycerol, in this compound, there are two types of alcoholic groups. First, primary. So I write here, it is a primary, it is a primary, it is a primary, primary. It is also primary. And middle carbon is secondary. So secondary alcohol. So there are two types of secondary, primary alcoholic and secondary alcoholic. In this way, there are two types of alcohols. Primary 2 in number, secondary 1 in number. So there are two primary alcoholic groups and one secondary alcoholic group. So when it is reacted with sodium, it is reacted with sodium, then first there will be replacement of hydrogen from primary. So CH2 single bond O N A, यहाँ से H निकल गया, इसकी जगह पर सोडियम अटैच हो गया, CHOH single bond CH2OH. ये आपका है हो गया कंपाउंड मोनोसोडियम, मोनोसोडियम, मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, ग्लिसरोलेट. Then if you continue the reaction, so here half H2 gas is given out. Here H. Now, if you continue this, again the reaction will take place and there will be for replacement of second hydrogen from second primary group ONA minus half H2. There is formation of disodium. So it is a disodium glycerolate. Disodium glycerolate. ठीक है. अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी है कि ये है तो आपको कौन सी पोजीशन पे है. मोनोसोडियम यहाँ पर है कि ये सेकेंडरी पे है या ये इस पे है, कौन से इस पे है. तो ये इस पे क्लियर नहीं हो रहा मोनोसोडियम, तो आपको इसको पोजीशन बतानी है. पोजीशन के लिए देखिए, ये आपका अल्फा, ये बीटा और ये है तो आपका रहेगा फिर से अल्फा. बिकॉज इट इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी, तो ये अल्फा, ये बीटा. तो ये क्या बोलेंगे हम, अल्फा मोनोसोडियम. यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा
alpha disodium. So it is alpha, it is alpha. So alpha disodium. तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंपाउंड बनेगा डाइसोडियम glycerolate. In that way, there is formation of disodium salt. Disodium salt is formed. Now, next है आपका second reaction. Reaction with HCl. Reaction with HCl. Hydrogen chloride. Reaction with hydrogen chloride. So, reaction with hydrogen chloride. Reaction with hydrogen chloride. So I write here H2, CH2, single bond C, here OH, H, single bond CH2OH. It is reacted with HCl, which is taken in large quantity, excess, at about 383 degree Kelvin. Higher temperature, it is heated up to suppose 110 degrees Celsius. In Kelvin, it is 383 degree Kelvin. So it is reacted with HCl, excess, large quantity, excess. Now, there are, as I have already said, there are two types of alcoholic groups, primary and secondary. There are two types, primary alcoholic group as well as secondary alcoholic group. Now, see here, in our previous lectures, we have already seen reaction of alcohols with HCl, HX, and we come to the conclusion that tertiary alcohols में reaction fast होती है as compared to secondary. Rate of reaction is more in secondary as compared to primary. So here there are two groups. तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर chances जो है आपके रिएक्शन सेकेंडरी पे होने के भी है और आप एक्सेस के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसलिए मोनो भी रिएक्शन करेगा. तो अब दो ऑप्शंस आपके पास हो गए, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl. यानी यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, दो OH ग्रुप फ्रॉम हियर HCl में से H और ये हो गया आपका OH. HCl में से again H and OH, sorry, it is H and OH. So HCl, there is formation of -2 H2O. Again, you will get here CH2 single bond Cl, single bond CH, single bond OH, single bond CH2. Sorry, it is Cl, and here OH. Means here, you see here, there is formation of mixture of two compounds. Here, there will be both OH groups replaced by Cl. Both the primary alcoholic groups are replaced by Cl. And here, one primary and one secondary, because you have already used here excess. Okay? So, there is no problem in the second one because secondary is replaced by Cl and primary is also. But here is the case that both the primary Cl are replaced. Okay? Now, why it happens? Because there is no problems. Secondary as well as primary, they are replaced by Cl. So, in accordance with our previous, but here we are giving this compound as additional compound. It is the another compound we are getting. It is because of here Cl is having bigger size and it is having more electron density. Therefore, the repulsion between Cl may take place. That is why here two chlorines, they are away from each other. So it is because of chlorine size, steric hindrance, है ना, जिसको बोलेंगे रुकावट आ रही है उसके अंदर, steric, because of steric hindrance,
there is formation of this type of compound. So you will get two compounds. First this one and second one is this one. Now we will name this compound. इसको अभी हमने आपको बताया कि ये प्राइमरी कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे. It is beta carbon. Again it is alpha. Chloro group is present on alpha carbon. So it is alpha. Now alpha बोले तो ये भी alpha और ये भी alpha, तो confusion हो जाएगा. तो इसको हमको थोड़ा सा differentiate करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? It is alpha dash. Alpha dash. So it is alpha. It is alpha dash. Both are similar, but we are here for differentiating that these two, they are two different carbons. So it will be called as alpha comma alpha dash. Alpha comma alpha dash dichloro glycerin hydrine. ठीक है. अल्फा डैश डाइक्लोरोग्लिसरीन हाइड्रीन. ठीक है, ग्लिसरीन से बना हुआ है इसलिए हाइड्रीन. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये अल्फा, इट इज बीटा, इट इज अल्फा डैश. तो क्लोरो ग्रुप्स आर दे आर ऑन अल्फा एंड बीटा. सो इट इज अल्फा कॉमा बीटा डाइक्लोरो ग्लिसरील हाइड्रीन. So in this way there will be formation. In this way the reaction will take place with chlorine. So we will go for next reaction. Next reaction is reaction with phosphorus halide. So here रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइड. तो कौन सा लेंगे? पहले PCl5 के साथ ले लेंगे. ठीक है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH. इट इज आवर ग्लिसरॉल. When it is reacted with PCl5, it is reacted with PCl5, then first there will be formation of टू कंपाउंड्स. कौन कौन से हो गए आपके? अभी जैसे आपके बने HCl के साथ, उसी तरह से CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2OH. ठीक है, ये हो गया आपका पहला कंपाउंड. प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHOH एंड हियर CH2Cl डाइसोडियम है ना. अगर if we continue this reaction with phosphorus pentachloride, excess of phosphorus pentachloride, then this OH as well as this OH both will be replaced, and this compound is also converted into 1,2,3 trichloropropane. It is also converted into 1,2,3 trichloropropane. So there will be formation of CH2Cl single bond CHCl single bond CH2Cl, plus there is formation of HCl plus POCl3. यहाँ पर भी आपका बन जाएगा HCl plus POCl3. ये माइनस और ये भी माइनस. ठीक है, या इसको अगर आपको इधर लिखना है तो ये it can be written here as plus HCl plus POCl3. ठीक है, इधर रहा तो आप माइनस और यहाँ पर रहा तो प्रोडक्ट साइड में प्लस. ठीक है, तो इन दैट वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन. ये आपका बन गया कंपाउंड. सो इस इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ. अच्छा, इसको कॉमन नेम के अंदर बोलना रहा तो इसको बोलेंगे ग्लिसरील ट्राइक्लोराइड. ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह पर यूज कर सकते हैं फास्फोरस पेंटा आयोडाइड. ठीक है, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड. तो फास्फोरस पेंटा आयोडाइड, तो अब ये फास्फोरस पेंटा आयोडाइड के साथ यहाँ तक तो रिएक्शन सेम टाइप जाएंगी जैसे अभी गई यहाँ पर in the similar fashion. So what I mean to say that when glycerol is reacted with PI5, है ना, phosphorus pentaiodide,
phosphorus penta iodide, phosphorus penta iodide, reaction with phosphorus penta iodide. तो रिएक्शन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH. Glycerol, glycerol is then reacted with phosphorus ट्राइआयोडाइड या phosphorus पेंटाआयोडाइड PI5. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया CH2I सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH2I, ठीक है. प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा माइनस POCl3 माइनस HCl सॉरी HI सॉरी ये PiO3 I write here sorry it is POI3 plus HCl sorry HI it is HI so it is HI, ठीक है. और कितने बनेंगे, ये बनेंगे 3, ये बनेंगे 3 फास्फोरस, ठीक है. HI बन गया POI फास्फोरिल आयोडाइड and 1 2 3 this compound is unstable, ठीक है, because of bigger size of iodine. तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो आयोडीन के बीच में, तो यहाँ पर दो आयोडीन इसके अंदर से निकल जाएंगे. सो CH2I सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH2I. सो इट विल लूज I2, यहाँ से I और ये I, it will be given out in the form of I2. So this carbon single bond is converted into double bond. So CH2 double bond CH single bond CH2I, ठीक है. ये हो गया आपका कंपाउंड जिसको आपने नाम देंगे अलिल आयोडाइड, जैसे पहले क्लोराइड था वैसे आयोडाइड है. सो द डिफरेंस दोनों के अंदर आपके समझ में आ गया. द डिफरेंस इज दैट when it is reacted with phosphorus pentachloride, there is formation of 1 2 3 trichloropropane. In the similar fashion, the first step is similar. First part is the similar, means glycerol is reacted with phosphorus pentachloride, pentaiodide or phosphorus triiodide. Then there is formation of the same type of product, that is here all the three OH groups are replaced by iodine. But because of the reducing nature of iodine, there will be elimination of I2, और जिसकी वजह से क्या होगा, it is converted into allyl iodide. So the end product, the resultant product is here allyl iodide. ये तो आपको क्लोराइड में नहीं मिलेगा, ऐसा आपको ब्रोमाइड में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको आयोडाइड के अंदर. ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी आयोडाइड के अंदर अलग प्रोडक्ट आ रहा है और क्लोराइड्स के अंदर अलग आ रहा है. यानी वहां पर Cl2 एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ पर I2 एलिमिनेट होकर अलिल आयोडाइड में वो कंपाउंड आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है. चलिए उसके बाद में आ जाते हैं, नेक्स्ट है वह है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड. रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, reaction with nitric acid. Glycerol CH2OH single bond CHOH single bond CH2OH. Glycerol is reacted with concentrated nitric acid HNO3. So I write here HONO2, that is HNO3, दूसरा HONO2, इसके बाद में यह आपका तीसरा HONO2 in presence of here concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated sulfuric acid. तो अब देखिए यहां से ये एक आप बना दीजिए वाटर मॉलिक्यूल और ये नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दीजिए इसकी जगह पर हाइड्रोजन की.
यहाँ से आपका H और ये हो गया आपका OH. It forms water molecule and nitro group will be substituted at oxygen. H and OH, they will be eliminating water in the form of water, and nitro group is substituted there on oxygen. So I write here CH2 single bond O, NO2 attach हो गया तो ये NO2 single bond CHO, यहाँ पर NO2 आके अटैच हो गया NO2 single bond CH2 single bond O NO2 plus 3H2O. There is formation of 3H2O. 3H2O इसका नाम है आपका, इसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन या जिसको है तो आप बोलेंगे ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट. ठीक है. ये जो है तो आपका एक्सप्लोजिव है. ये जो कंपाउंड है इट इज एक्सप्लोजिव. इट इज एक्सप्लोजिव कंपाउंड. ठीक है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड. ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो है आपका रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड. सो रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड. रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड. एसिटिक रिएक्शन विथ acetic anhydride. So I write here CH2 single bond OH single bond C single bond OH single bond H single bond CH2 OH. It is reacted with CH3 C double bond O O C double bond O single bond CH3. ठीक है, यहाँ से H निकल कर ये चला गया यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और ये जाकर अटैच हो गया यहाँ पर. एसिटाइलेशन. ठीक है, इसको हीट किया अपन ने. अगर हम ये लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो सेकेंड OH group will react in the similar manner. Third OH group is also reacting in the similar fashion. So there will be formation of CH2O. It is from our glycerol. C double bond O single bond CH3. ठीक है, ये हो गया आपका CH2O C double bond O CH3. Then CH single bond O. It is again getting attached with their acetyl group. Then the third one C double bond O CH3. अब ये क्या बन गया आपका, ये इससे बन गया एसिटिक एसिड प्लस 3 CH3 C double bond O OH. ठीक है, there is formation of 3 acetic acid molecules. ठीक है, इसको अपन नाम देंगे ग्लिसरील ट्राई एसिटेट. ग्लिसरील ट्राई एसिटेट. तो इस तरह से तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा. अब लास्ट रिएक्शन जो हम इसके अंदर देखेंगे वो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन. सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल. तो पहले हम यहाँ पे लेंगे CH2OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH. अब देखिए यहाँ से
इसको अपन हीट करते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज यूज्ड एज P2O5 phosphorus pentaoxide, or we can use here concentrated sulfuric acid, or we can use here other dehydrating edge, potassium hydrogen sulfate, ठीक है, और है ना, और इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, यहां से OH और यहां से निकल गया H, and this single bond is converted into double bond. So CH2 double bond C, यहाँ से OH और यहाँ से H, I split it as H, यहाँ से H, ये दोनों मिलके निकल गया यहाँ पे सेकंड वाटर मॉलिक्यूल. So single bond CHOH डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड गया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, हाँ बराबर है, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, ये CH2, देखिए ये OH निकलने के बाद ये बचा CH2, फिर इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड था, इसका हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये H निकल गया यहाँ से तो ये C, इसके बाद में यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो दोनों कार्बन के बीच में भी हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, अब इसमें CHOH बच गया तो ये CHOH, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया पहला. इट इज अनस्टेबल, सो आई ड्रॉ इट इन स्क्वायर ब्रैकेट हियर. स्क्वायर ब्रैकेट डालने का मतलब क्या है, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल. सो आई राइट हियर, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले यहाँ पर, +2H2O, +2H2O, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HOH +2H2O, इस तरह से यहाँ पर देखिए ये हो गया. अब देखिए ये अनस्टेबल है तो आई राइट हियर अनस्टेबल कंपाउंड को यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, ये अनस्टेबल है, सो आई राइट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इज रिटन, सो इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट, it undergoes rearrangement, तो rearrangement में क्या होगा, यहाँ का H निकल के चला जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो जा रहा है आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, सो जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, सो CH2 डबल बॉन्ड C, ये H आके जुड़ने के बाद बन गया ये CH, आफ्टर गेटिंग this hydrogen it will be converted to CH, single bond, double bond is now converted into single bond, C double bond O, single bond जो था ऑक्सीजन के साथ वो हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, एंड ऑलरेडी वन H इज अटैच्ड, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे CHO, है ना, CHO, सो इट इज ए CHO, सो इसका नाम है एक्रोलीन, so there is formation of acraldehyde or acrolein, acraldehyde, acrylaldehyde, या जिसको अपन कॉमन इसके अंदर बोलेंगे एक्रोलीन, ठीक है, एक्रोलीन, so there is formation of acrolein, so it will form acrolein, और इसको अच्छे फॉर्म में लिख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, एक्रोलीन CHO, ठीक है, CH2 CHO, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन गया. अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो होता है अब इसके अंदर उसके यूजेस चैप्टर में, है ना, पॉइंट पे, तो यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल के यूजेस, तो पहला तो क्या हो गया आपका, नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर से आपको पता चला कि वो है तो एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज हो सकता है. सेकेंड इज दैट इट इज यूज्ड एज ए सॉफ्टनिंग एजेंट एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट,
इन टोबैको, यानी तंबाकू वगैरह को है तो थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए और मॉइस्चरिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन शेविंग क्रीम, शेविंग सोप, प्रिंटिंग इंक। तो इसको प्रिंटिंग क्या क्या है, अपन एक एक पॉइंट लेते चलते हैं इसको। एक तो हो गया आपका एक्सप्लोजिव के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर एक्सप्लोजिव, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, कम ग्रेड का होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट आपको है तो यहाँ पर मॉइस्चरिंग एजेंट, मॉइस्चरिंग मॉइस्चरिंग एजेंट बोल के इसको यूज करना है। किसमें ऐड करना है, टोबैको के अंदर। ठीक है, टोबैको के अंदर। ठीक है, इसको यूज करते हैं शेविंग क्रीम के अंदर, शेविंग क्रीम के अंदर, शेविंग सोप के अंदर, शेविंग सोप के अंदर, सोप्स। इसके अलावा कहां पर यूज करना है, शेविंग सोप्स। और इसके अलावा कहां पर यूज करना है इसको, इसको यूज करना है प्रिंटिंग इंक बनाने में। इट इज यूज इन प्रिपेयरिंग प्रिंटिंग इंक, प्रिंटिंग इंक बनाने में इसका यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा कहां पर यूज कर सकते हैं हम, शू के जो पॉलिश होती है, शू पॉलिश, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग शू पॉलिश। नेक्स्ट, it is used as an anti-freeze, anti-freeze in automobiles है ना, जहां पर है तो बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर वाटर तो फ्रीज हो जाता है, तो रेडिएटर के अंदर, ये रेडिएटर्स, फोर व्हीलर्स में उसमें जो रेडिएटर होता है कूलिंग के लिए, उसके अंदर है तो इट इज यूज एज ए एंटी फ्रीज, यानी वो पानी को है तो फ्रीज होने से कम रोकने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेंट इन वॉचेस एंड क्लॉक्स। ठीक है, वॉचेस एंड क्लॉक्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इसका टेस्ट स्वीट रहता है तो इसको है तो यूज किया जाता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट, एजेंट के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज करते हैं। इन कन्फेक्शनरीज वगैरह में इसका यूज किया जा सकता है, किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है